Hi, everyone. So I welcome each one of you to this beautiful webinar of Humkara with Halim. And thank you so much to each one of you for coming and joining this webinar today. I am Meena Bed. I am a multi-modality healer. I'm also a spiritual trainer and a spiritual coach. And today we are going to learn a lot. Today is already 6th of June and it is Shani Jayanti. As you all know that आज शनि जयंती है and आज हम कोई भी चीजें करें, कोई भी दान करें या काला तिल दान करें या सरसों का तेल दान करें तो शनि देव जी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे जो भी बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो दूर हो जाते हैं. तो इट्स नॉट लेट. इवन आफ्टर द वेबिनार यू कैन गो टू अ शनि टेम्पल एंड डोनेट सम ऑयल ओवर देयर. So, one more thing is today, that is a new moon, that is a Amavas. आज Amavas भी है and माँ काली का दिन भी है. So, I don't know, by coincidence, पहले I was doing the workshop on 7th, this webinar, and automatically ये अपने आप ही, this shifted to 6th of June due to some things I really don't know, because Ma has her own way of, connecting to everyone. So today is Ma Kali's day also because it is Amavas, and I did my Ma Kali sadhana in the afternoon, and now we are meeting today. So Ma Kali herself also wants to connect to all of you. I hope you all are excited to get connected to the divine energies, because you will feel the divine energies today. If your camera is on, you will feel more. If your cameras are off, if you're doing something, कोई खाना बना रहा है, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो because we are distracted, तो वो energies इतनी अच्छे से नहीं आती है. Because I believe that Ma Kali herself is living in my home. She's always around me. And today, after this invocation, please keep yourself muted because we are disturbing the class if you are unmuted. So I will request each one of you, please keep yourself muted so that जो मैं बोल रही हूँ वो link break हो जाता है when you are speaking something in between. So today I'm equally excited as much as you are. And as we begin this webinar for today, first of all, I welcome all of you to this spiritual world. And before proceeding further, I would like to tell you a story. किसको स्टोरी नहीं सुननी है वो एग्जिट कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले आई विल बिगिन विद अ ब्यूटीफुल स्मॉल शॉर्ट स्टोरी. डू यू वांट टू हियर टू दिस स्टोरी? सुननी है स्टोरी? तो वीडियो कैमरा तो ऑन करो. 6-7 जनों को सुननी है, सिर्फ उनके कैमरास ऑन है, बाकी सबके कैमरास ऑफ है. So if you keep the cameras on, I also get connected to you and I also enjoy. Please don't raise your hands. We will take all the questions later, okay? So the story goes this way that this is a story of a caterpillar and a butterfly. Caterpillar और एक butterfly की एक story है ये, that how a caterpillar becomes a butterfly, and in that form of transformation, जब वो transform होता है, caterpillar से butterfly बन रहा होता है, उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है. And उस समय अगर हम दया करके, हम सामने अगर देख रहे हैं और अगर हम दया करके caterpillar को help करेंगे, तो what will happen? The caterpillar will either die or the butterfly will not emerge out of it beautifully. So if we don't disturb the process, which is the life process, it's a cycle of life, कि उसको उस caterpillar से butterfly बनने के लिए उसको उस process से गुजरना पड़ता है. In the same way, it has to go through a lot of pain to become into a beautiful butterfly with beautiful wings, जिसको हम देखते हैं, and we are so happy the moment we look at the butterfly. So in the same way, we also have to go through the same process in life to become a better version of ourselves and to become somebody. आज कुछ बनने के लिए ऐसे ही हम नहीं बन जाते हैं एक दिन में कि चुटकी बजाई और हम कुछ बन जाए. So you have to go through that process. हर इंसान को उस process से गुजरना पड़ता है, उस transformation के process से गुजरना पड़ता है. Then you become somebody, then you become a healer or a teacher or a trainer or whatever you want to become. So if you have come here today, आज अगर आप यहाँ आए हैं, it is for some divine purpose, because you are also guided by the divine, you are guided by Ma Kali herself, and that is my belief. Because if you're meant to have something, you will have it. And now let's understand more about what is Humkara with Halim and who is Mahakali. Who is Ma Kali? Basically,
नाउ वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि माँ काली से हम कनेक्ट डेवलप कर रहे हैं. होमकारा विद हलीम एक हीलिंग मोडालिटी है जिसमें हम माँ काली से कनेक्ट होके उसके बाद माँ काली की एनर्जीज से कनेक्ट होके हम वो हीलिंग करते हैं. तो सबसे पहले हम खुद की हीलिंग करते हैं. इसलिए जब हम ये ज्वाइन करते हैं उसके बाद वी डू 11 day प्रोसेस ऑफ सिद्धिकरण. हम सिद्धिकरण प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो हम सिंबल सीखेंगे ना, इसमें क्या होता है, इसमें मेजर 3 symbols है. Some people say that it is 3 symbols, some people say it is 6, and I am the one who says it is 6 because first symbol is the Homkara symbol, the second one is the Halim symbol, and the third one is Sadhya. Sadhya के अंडर में there are more symbols. तो या तो आप 3 बोलो उसको या 6 बोलो, that's one and the same thing. सिंबल सारे आपको सिखाए जाएंगे, उनकी अट्यूनमेंट आपको दी जाएगी. बिकॉज क्या होता है, कोई भी चीज जैसे रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, लामा फेरा है, Omkara with Halim, and nothing works without attunement. Attunement, that is, especially Reiki and these symbol वाली जितनी भी ये healing modalities है, ये बिना attunement के work नहीं करती है. Why? Because you know I have to transfer. जैसे मनी रेकी भी है, अष्टलक्ष्मी रेकी भी है, वो symbols मेरे energy body से आपकी energy तक वो जाते हैं. And फिर वो स्थापना कैसे होती है उनकी? When you do the 11 day सिद्धिकरण, तो आपके बॉडी में अगर कोई भी डिजीजेस है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डिफिकल्टीज है, अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, तो जो साध्या के अंडर में सिंबल आता है उससे आपकी लव लाइफ में करेक्शन होने लग जाता है. प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, रिलेशनशिप इश्यूज, वो सब ठीक होने लग जाते हैं. देन देयर इज अनदर सिंबल जिससे आपकी अगर एनर्जी बॉडी बहुत वीक है, एनर्जी नहीं है, मतलब ऊर्जा ही नहीं है, तो उससे उस सिंबल से आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है. एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप इवन रात को 2 बजे भी आप इतने एनर्जेटिक होते हो कि कुछ भी कर सको. सो and one symbol is which increases your wisdom, यानी कि especially if you use it for your children. जैसे मैं यूज करती थी regularly when my kid was giving class 12 exams. I regularly used to put that symbol in his Agya chakra. This is the Agya chakra. Now before coming here you should know all the chakras. If you don't know, I will explain you all the chakras, because हम एक एक चक्रा में वो एक एक सिंबल डालते हैं और हम सबसे पहले सिद्धिकरण करके सेल्फ हीलिंग करते हैं. फिर जब हम खुद हील हो जाते हैं तब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट माँ काली. माँ काली कौन है? So the guidance of Mahakali is particularly resonant for individuals who are seeking empowerment. जिन भी लोगों को empower होने की एक प्यास है, एक इच्छा है, and those who are seeking a deeper, more experiential engagement with the divine, वो लोग यहाँ पे आते हैं, वो लोग माँ काली से कनेक्ट होते हैं. सबकी इच्छा नहीं होती है माँ काली से कनेक्ट होने की, सबको नहीं एम्पावर होना है, सबकी इच्छाएं डिफरेंट डिफरेंट होती है. सो जो अंदर से अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, अपने आप को ज्यादा पावरफुल, बिकॉज माँ काली इज द मोस्ट पावरफुल. शी इज वेरी फियर्स, शी इज वेरी पावरफुल, बट शी इज वेरी सौम्य ऑल्सो. तो हम उनके सौम्य नेचर से कनेक्ट होते हैं ताकि हम पावरफुल हो जाएं, बिकॉज शी इज द मोस्ट पावरफुल देवी. So because of the powerful nature of these goddesses, which we are going to cover in this healing modality, that is Ma Kali and Ma Baglamukhi, guidance from a teacher is highly recommended. Now, what some people do is that they just go through the YouTube or इधर उधर से knowledge लेके, बुक्स या किसी के नोट्स मिल जाते हैं तो वो नोट्स से पढ़ के अपने आप समझने की कोशिश करते हैं. बट एवरीथिंग कैन नॉट बी डन फ्रॉम अ बुक. आई हैव लॉट ऑफ बुक्स, बट बिलीव मी, इवन आई हैड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ taking this training from a mentor or a guru ma. So you have to take this training, you have to take this attunement from a teacher, you have to go through that process, and once you learn this, you can also later on teach to other people by just doing a 1 day, that is a 1.5 to 2 hours का एक क्लास है जिसमें आप सीख सकते हो कि आप कैसे सिखाओ दूसरों को, and immediately after learning that you can start earning money also the way I am earning money. So because of the powerful nature of these goddesses, ये जो देवियां हैं, माँ काली and माँ बगलामुखी, they are very fierce, they are very very strong and they are very powerful. So इनसे कनेक्ट होने के लिए पहले आपको एक टीचर के थ्रू ही करना चाहिए, so that you, if you are doing any mistakes, there is someone to guide you. If you are making the symbols in a wrong way, there is someone to guide you. Because अगर आप wrong symbol बना रहे हो, these are all 5D symbols. जैसे 2D क्या होता है जो हम पेपर में बनाते हैं, 3D भी होते हैं, but these are 5D, यानी कि 5 dimensional symbols which work only when we draw with a finger. तो हमारी जो फिंगर से हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, उससे वो सिंबल में शक्ति आती है, ताकत आती है. Why? We'll learn about it.
So माँ काली is a fierce protector against evil. कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती if you are connected to माँ काली. She is a very powerful symbol of time, change and liberation. आपको liberate कर देती है from the cycle of birth and death. She is a powerful symbol of time. आप पंक्चुअल होना सीख जाते हो और आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, एक शिफ्ट आने लग जाता है. So you know what happens is basically क्या होता है हमारे पास पूरा, you know, when you get connected to the divine, you are getting the whole samudra of knowledge and grace. But what we say, we ask for just a small thing कि हमको सिर्फ ये एक छाता चाहिए, जबकि there is just a, you know, abundance of grace available. So just even if you are just getting connected to her, आप दिन भर अगर नहीं भी मांगो कि माँ मुझे ये दो, माँ मुझे ये दो, automatically you start receiving a bundle of blessings. Whatever you wish for, even in the heart of your hearts, you get that. But obviously you have to maintain that connect. खाली ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया, 11 दिन सिद्धिकरण प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप भूल गए इस मोडालिटी को, उससे कोई कनेक्ट डेवलप नहीं होगा. हर चीज में मेहनत लगती है, हर चीज में आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा. एवरी डे यू हैव टू just remember for 5 minutes you have to maintain that connect, because if you're connected to her, she will come and she will always help you the moment you chant her name. So she is the most misunderstood Devi, as I told you in the beginning, and in fact she is the most loving goddess. She's just like a ma, she's just like a mother. You just call her ma, mujhe, I just surrender to you, and please look after this problem of, it's not my problem, it's your problem, and that problem is no more there. So this is the way you get connected to her. And embracing her, you have to, you know, she looks fierce, तो आपको उनसे डरने की बजाय you have to embrace her, you have to embrace her in her entirety, the way she is, she's a nagna, the way she wears, you know, mundamala and everything, you have to love her the way she is. She says that मैं तो ऐसे ही हूँ, I am in my rawest figure, I am in my rawest form, but you know, you have to get connected to her, तो आपको उनको वैसे ही अपनाना पड़ेगा. She will not change, you have to change your thought form. So you know, embracing her in her entirety invites a journey of empowerment and profound transformation. आपकी life में अपने आप, the moment you get connected to माँ काली and माँ बगलामुखी, and the most important thing is that the moment you get connected to माँ बगलामुखी, you know, आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी आपके एनिमीज है, वो अपने आप दूर होने लग जाते हैं, you know. And she guides us through the endless cycles of existence. So काली, जो माँ काली है, उनको उसकी संपूर्णता में अपनाना सशक्तिकरण और गहन परिवर्तन की यात्रा को आमंत्रित करता है. एंड महाकाली का जो मार्गदर्शन है उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से खास है जो सशक्त होना चाहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, जो एम्पावर होना चाहते हैं, जो पावरफुल बनना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ, यू नो, नेगेटिविटी अराउंड अस. एंड क्या होता है, उस नेगेटिविटी से कभी हमारे थॉट्स प्रभावित हो जाते हैं, कभी हमारे, यू नो, बिजनेस पे प्रभाव आने लग जाता है. सो व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अ डिवाइन एनर्जी, जब आप रोज अपनी प्रार्थनाएं, अपनी मेडिटेशन, अपनी सिद्धिकरण अपनी रोज करते हो, तो आपके चारों तरफ एक कवच बन जाता है. वैसे भी द हलीम सिंबल, what it does is I draw that symbol every day around myself. I always shield myself so that no evils eye, no negativity can enter that shield. So you are always protected. So when you get connected to this modality, it protects you 24/7. So ये Omkara with Halim क्या है? This is a very beautiful, a very quick and yet very powerful healing modality connected with the goddess energies and has been introduced by S.K. Ji. Now he did a lot of research on this subject and then he has given this to us. It is fifth dimensional healing modality, and here we are going to get connected to two divine energies, that is Ma Kali and Ma Baglamukhi, and we are going to learn a lot of sacred symbols and बीज mantras. हमको दिन भर माँ काली बोलने की जरूरत नहीं है. हम एक बीज मंत्र लर्न करेंगे जिसको हम बोलने से मात्र से ही हम कनेक्ट हो जाते हैं. अब ये symbols 5D क्यों है? Why are these symbols 5D? See, I'm not going to stop talking and telling you so that this webinar is very informative and you're able to understand everything. So that even if you're not joining the class, कभी आप हो सकता है एक साल बाद करो, because see,
जब होना होता है, जब डिवाइन टाइमिंग होता है, तभी ये सब चीजें हमसे हमारे लाइफ में आती है। जब आपका डिवाइन टाइमिंग होगा तभी आपके पास आएगा ये। सो even if you're not doing the class, still you are gaining a lot, you are learning a lot. So why these symbols have the vibration of more than 3,80,000 mantras, and we can use them for different purposes. Like we can cleanse our energy, we can, manifest anything, we can cut our cords. जो जिस कॉर्ड से बहुत सारे कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं हमारी एनर्जी से, जिससे हमारी एनर्जी लीक होती है, जिससे हमारे हमारे नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आ जाती है, हम डिप्लीट हो जाते हैं। सो और ये वाली जो हीलिंग मोडालिटी के सिंबल्स है, ये एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जी, सब चीज पे वर्क करता है। इवन इट वर्क्स ऑन एडिक्शंस एंड क्लियरिंग द नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव पैटर्न्स आल्सो, इफ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। इफ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली यानी कि आपने अगर किसी की हीलिंग की है, एक बार आपके पास कोई आया कि मुझे हीलिंग करानी है, तो यू हैव टू मिनिमम गिव हिम 3 to 4 हीलिंग्स, यानी कि 3 to 4 डेज। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आपने 3 हीलिंग कर दी, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 4 दिन आप हीलिंग करोगे ना, द पर्सन विल कम बैक टू यू एंड से दैट it's very, very effective and I'm feeling so much better and things are becoming better in my life. Believe me, it will happen. We all know that this healing holds a lot of importance in our life. आप कोई भी तरह की healing करो, चाहे लामा फेरा करो, आप अगर किसी को मनी प्रॉब्लम्स है तो मनी रेकी करो, कोई भी चीज करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज फेथ। हम कोई भी चीज करें, फेथ से हम करेंगे तो हमारे लिए वो ज्यादा वर्क होता है, ज्यादा वर्क करता है। So here you will get the attunement of all these symbols, which will be put in your energy body. Now they will start working for you after the practice of सिद्धिकरण। जैसे आज आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, 5 दिन की क्लास है, मेरे ख्याल से 5 दिन में कंप्लीट भी नहीं होगी ये, because I think when I announced the 5-day, then I thought that 5 days में ये complete होने वाली नहीं है, it will take 6 days. Why? Because see, 5 days तो class होएगी and 6th day we will be doing the attunement. Attunement में भी at least आधा पौना घंटा लगता है, because I'll be attuning all of you. जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया तो उनको अट्यूनमेंट देने में भी मुझे समय लगता है। सो इसलिए द 6th day will be the attunement. 5 दिन का हमारा कोर्स है, 5 दिन में खत्म होगा एंड देन द अट्यूनमेंट। सो क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि आज आपका 5 दिन का क्लास हुआ, 6th डे आपका अट्यूनमेंट हो गया और 7th डे से आप हीलिंग कर रहे हो। इट विल वर्क वंस यू कंप्लीट द सिद्धिकरण। व्हाई सिद्धिकरण फॉर 11 days? सिद्धिकरण क्या होता है? बेसिकली एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, और वो एक कंपल्शन है, इसमें करना जरूरी है, चाहे आप कभी भी स्टार्ट करो, फ्रॉम डे 1 to day 11, बीच में एक भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, एंड इट टेक्स ओनली हार्डली 15-20 minutes. So you have to just do that. It's like a small meditation which you have to do every day. And once you do that, मतलब आपने अपनी healing कर ली, अब आप तैयार हो किसी की भी healing करने के लिए, only then you can heal other people. It works as a distant healing also. It works from person to person also. मतलब आप directly person to person कर सकते हो, आप distance healing भी कर सकते हो इसमें। प्लस इसमें और एक क्या फायदा है, इट स्टार्ट्स करेक्टिंग द वास्तु ऑफ योर होम। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जहां पे बाथरूम नहीं होना चाहिए वहां बाथरूम है, जहां पे मंदिर नहीं होना चाहिए वहां मंदिर है, या सेक्रेट स्पेस, आपका कोई भी सेक्रेट स्पेस हो सकता है, जो भी चीजें हैं कुछ गलत बनी हुई है, तो देयर इज अ स्पेशल यंत्र विच आई प्रोवाइड यू, विच इफ यू कीप इट इन योर होम इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इन द स्मॉल, आप एक, मैं पीडीएफ फॉर्म में दूंगी आपको, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको लैमिनेट करके आप अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसको रख दो। अगर आपको कोई उसकी पूजा पाठ नहीं करनी है, बस यू जस्ट हैव टू कीप दैट, बस आते जाते अगर आपकी नजर भी पहुंच गई तो ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स करेक्टिंग द वास्तु ऑफ योर होम, द वास्तु ऑफ योर ऑफिस ऑल्सो, यू कैन कीप इट इन योर ऑफिस। तो क्या है, ऑफिस में बहुत लोगों का आना जाना रहता है, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी वहां पे अक्यूमुलेट हो जाती है, तो क्लेंजिंग भी होती रहेगी। So after practicing this and learning the teacher's level, you can also teach it to other people. That is a separate thing. That is a one-day class. It is separately chargeable because everybody is not keen to, learn the teacher's level. आधे लोग बोलते हैं कि हमको सिर्फ खुद के लिए करना है, but believe me, एक टाइम के बाद आपको खुद को फील होने लग जाता है कि नहीं, मुझे दूसरे को भी सिखाना है, बिकॉज तभी तो ये कंटिन्यू होएगा ना प्रोसेस। आज मैंने किसी से सीखा, मैंने आप 10 लोगों को सिखाया, फिर आप 10 ने 20 को सिखाया, तो ये क्या एक चेन बन जाती है। It becomes like a chain, and when everybody is a healer, when there is one healer in every home, the world becomes a better place. So this should be the mission of each and every person. And the second goddess that we connect to is Baglamukhi Mata, and we connect to her
you know, because she is called as Pitambara also. She is called as Pitambara or Pitambari because she is always wearing yellow golden clothes and she gives us wisdom, strength and protection. Now ये हरिद्रा देवी में प्रकट हुई थी. हरिद्रा देवी एक है स्थान जहाँ पे ये प्रकट हुई थी और पृथ्वी को इन्होंने बचाया था उस समय. तो इसलिए she is like a protectress देवी and she gives us protection from any kind of negativity. She is called upon when there are any kind of, you know, court cases may, and politicians especially, you know, invoke her. There is a temple of Ma Baglamukhi in Uttarakhand. वहाँ पे इनके हवन किए जाते हैं and people बहुत मान्यता है इनकी, and she bestows you with lots and lots of blessings, and she is the one goddess you must pray to if you want to get rid of your enemies. So why you should learn this healing modality is हमारी जो now this is little bit, you know, थोड़ा सा ये इंट्रिकेट है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या करता है. बेसिकली हमारी बॉडी में चेंजेस कैसे आने लग जाते हैं जब आप ये हीलिंग मोडालिटी सीखते हो. तो हमारे अंदर, इफ यू नो, देर आर, यू नो, 3 नाडीज. हमारे अंदर मेजर चक्रास होते हैं विच आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द चक्रास. हमारे 7 चक्रास होते हैं, बहुत सारे माइनर चक्रास होते हैं. हमारे हैंड्स में माइनर चक्रास, फीट में, सब जगह छोटे छोटे माइनर चक्रास होते हैं. तो हमारे जितने भी चक्रास हैं वो सारे अलाइन होने लग जाते हैं और बैलेंस होने लग जाते हैं. नेगेटिविटी उसमें से हटने लग जाती है. एंड हमारी 3 नाड़ियां होती है, द ईड़ा, द पिंगला एंड द सुषुम्ना. हमारी जो 3 नाड़ियां होती है और ब्रह्म नाड़ी हमारी एक्टिवेट होने लग जाती है. सो हमारे जो 9 चक्रास होते हैं, बेसिकली इन दिस आई विल बी टीचिंग यू दैट हमारे हमारे 2-3 चक्रास होते हैं जो हमारे बाहर क्राउन चक्रा के ऊपर भी होते हैं. सो दे ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड एंड द क्राउन चक्रा के ऊपर जो हमारा सहस्त्र, इसीलिए हम क्राउन को क्या बोलते हैं, सहस्त्रार चक्रा बोलते हैं. जो हमारा लोटस फ्लावर होता है वो ओपन हो जाता है सो दैट यू स्टार्ट अब्सॉर्बिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स डायरेक्टली एंड इट बैलेंसेस ऑल योर चक्रास, इट बैलेंसेस ऑल योर नाडीज. नाउ पिंगला इज द सन नाड़ी, हमारी सूर्य नाड़ी होती है एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी में हमारी पिंगला होती है. ईड़ा हमारी मून नाड़ी होती है यानी कि चंद्र नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में होती है. एंड जब हम ये सिंबल्स अपने एक एक चक्रा में डालते हैं, जब हम हीलिंग सीखते हैं और हम अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो हमारी सन नाड़ी, हमारी मून नाड़ी दोनों बैलेंस हो जाती है एकदम. यू नो, जैसे आपने स्पाइरल देखा होगा बहुत सारे डायग्राम्स में और पिक्चर्स में, पिंटरेस्ट में, कि यू नो चक्रा का जो चार्ट बना हुआ है, जो एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसे 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 हमारी एनर्जी मूव होने लग जाती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन टू द क्राउन, thus activating the ब्रह्म नाड़ी which finally activates the कुंडलिनी. Now हमारी जो ब्रह्म नाड़ी के एंड पे, यानी कि हमारी जो बीच में सबसे नीचे बेस ऑफ द स्पाइन में हमारी कुंडलिनी होती है, वो भी एक्टिवेट होने लग जाती है. The moment the कुंडलिनी starts getting activated, you start getting downloads from the universe. आपको धीरे धीरे धीरे, obviously it will not come in one day, your intuition becomes better, you start getting messages from the universe. It happens with a practice. You have to practice. You can, you know, enhance your intuition with practice. You have to practice these symbols regularly from time to time and you evolve faster. Your energy body becomes more cleaner. आपकी जो चक्रा सिस्टम है वो क्लीन हो जाता है एंड आप प्रोटेक्टेड रहते हो. जल्दी से कोई भी साइकिक अटैक, इवल्स आए, ये सब नहीं होते हैं आपके. सो हमारी अगर पहले से ही इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाए तो हमको मदद मिलती है. हमको इंट्यूशन हो जाता है दैट यू नो इफ वी आर प्लेइंग अ गेम और समथिंग, हमको इंट्यूशन हो जाता है, यू नो, दैट नहीं, you know, I should not do this. If you are investing money in share market, so you will not invest money over there, you will invest over here. So basically it is helping you to make your life better and better and better. एंड आपकी एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी भी बहुत स्ट्रांग हो रही है कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ रहे. तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. ब्लॉकेजेस हटने लग जाते हैं. कार्मिक कॉर्ड्स जो होते हैं कनेक्ट करते हैं हमको, जो हमारे एथरिक कॉर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, वो भी कट होने लग जाते हैं. क्योंकि ये क्लियरिंग सिंबल्स ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है, बिकॉज ये बहुत सारे मंत्रास की वाइब्रेशन से बने हैं. So if you are someone who wants to feel good and keep a clearer mind and work on your life force energy, because your life rotates all around how we feel in our mind, in our body. So this gives you greater vitality. आपके अंदर बहुत एक ची एनर्जी, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी होती है ना, जो हमारी ची होती है, जो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो हमारी मेंटेन रहती है और एक ब्रिज बन जाता है बॉडी एंड माइंड के बीच में. एंड दिस वर्क्स डीप इन योर बॉडी.
You have to come and experience this for yourself and feel clearer and content and have a deeper connection with your soul and mind. Now these days, like एक और चीज है कि पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे दिन भर वीडियो गेम खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है. सो इसमें एक स्पेशल सिंबल है जो आप जब अपने ऑब्वियसली आप खाली एक ही सिंबल उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बच्चे के ऊपर आप नहीं उसके ऊपर डालोगे. आप सारे जब सिंबल्स बच्चे के ऊपर डालते हो, ऑब्वियसली फ्रॉम द नॉट बिलो द एज ऑफ 7-8, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव होती है छोटे बच्चे, तो उनसे बड़े बच्चे, तो उनकी एनर्जीज भी स्टेबल हो जाती है एंड उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है धीरे धीरे. प्लस देयर इज अ सिंबल व्हिच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हार्मनी इन योर रिलेशनशिप्स एंड लड़ाई झगड़े घर में भी शांति होने लग जाती है धीरे धीरे. जो भी लड़ाई झगड़े क्लेश है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, बिकॉज आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपका नेचर डिफरेंट हो जाता है. concentration आपको you feel that why waste time in useless things, let's do something more substantial, much better. तो इससे क्या है, ऑब्स्टिकल्स भी हटने लग जाते हैं. अगर हमारी लाइफ में कोई भी एनिमीज है तो वो अपने आप ही दूर होने लग जाते हैं, बिकॉज माँ बगलामुखी she just cuts the tongue of your enemy if he is speaking something wrong about you. So if you're a student, if you're a businessman, if you're a government official, it helps each and every person to heal them. So you can learn this and you feel fantastic and you feel protected. So lift up your energy by connecting to the divine energies and learning this beautiful, powerful healing technique. So I hope you understood a lot about it. And now we'll go directly to the question answers. If you want to ask a question, you have to, switch on your camera. Otherwise, I'll not be able to, answer your question. If your camera is off, I'll not be answering. So now you can just ask me questions. How was the session, first of all? Did you enjoy? Did you understand a little bit about it? I get goosebumps when you talk about her. Yeah, she's here. She's always with me. She's still listening to you, what you want to ask, what you want to say. Yeah, come on. If you have any doubts कि इस healing modality से क्या होगा, क्या हमारा फायदा होगा, प्रीति जी है हमारी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट जो आज उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है. वो तो बस मेरी कोई भी क्लास हो तो शी जस्ट वांट्स टू ज्वाइन. प्रीति जी, आप बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? माँ काली मेरे घर ही आ गए. आपके घर आ गए और आप हीलिंग प्रैक्टिस करते हो क्या? सिद्धिकरण किया आपने? हाँ जी, सब. मैं ना एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि काली जी का मंदिर मेरे आजू बाजू कहीं नहीं है, और मैं गाड़ी से जा रही हूँ, सामने लिखा हुआ है काली जी मंदिर. ओह, मेरे घर के एकदम पास. अच्छा, ओके. माँ काली खुद आई है मेरे पास. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट. सी यू आर ब्लेस्ड एंड तभी आपने ये सब कुछ सीखा हुआ है, बट आप बार बार ये ज्वाइन करते हो क्लासेस, तो क्या होता है, हमारा रिवीजन भी होते रहता है. और हमेशा मैं जब भी क्लास मेरा जैसे 6 महीने, इस बार तो बहुत लंबे टाइम बाद आ रहा है बिकॉज आई हैड अ वेडिंग एट माय होम. सो इस बार आई एम कमिंग बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो क्या होता है, व्हेनेवर यू जॉइन इट न्यू, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न. कुछ ना कुछ हमेशा नया ही एड ऑन होते जाता है. मेरी भी नॉलेज में ऐड होता है तो वो मैं सब बताती रहती हूँ. आई कीप शेयरिंग इट इन द क्लास. So if you have any questions, you can ask me the questions that, believe me, but it's a very beautiful healing modality. बहुत अच्छा. और घर में बहुत शांति भी लगती है, और एक ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ है, कोई है मेरे साथ. हाँ, आपने तो वो भी कर लिया ना 10 महाविद्या भी मेरे से. आई ऑल्सो टीच 10 महाविद्या. इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव क्लास. इन्होंने तो खैर मेरी सारी क्लासेस कर रखी हैं. ये तो मेरे को मैसेज करती रहती है कि अब आप कोई नया सिखा रहे हो क्या, कुछ सिखा रहे हो क्या. सो you know what, basically 10 Mahavidya is the next class which I'll be coming up with. It's a beautiful, again, it's not about any kind of healing. वो कोई एक healing modality नहीं है. उसमें I will be teaching you about the 10 different forms of Ma Kali. And like I have this Kali oracle because I'm a tarot card reader also. So this is the Kali oracle which I keep, and I'm connected to her through a lot of various things. I keep practicing. I do my sadhana every day. Yeah. मैम इसकी फीस क्या है आपके कोर्स की? कौन से क्लास की? दिस होमकारा विद हलीम. यस मैम. Yeah, this is for 8800. हमने पहले सोचा था कि हम सिर्फ early bird रखेंगे, but now the class is for 8800 only for 5 days plus 1 day of attunement and the notes and everything.
the whole knowledge and मैम information. ऐसा होता है ना कि थोड़े टाइम के लिए कोई सीखता है, फिर बाद में वो चीज नहीं हम लोगों के काम में आती है, हमें कस्टमर नहीं मिलता लाइक सी, अगर आप इसी थॉट फॉर्म से अगर कोई भी चीज ज्वाइन करोगे तो आपने वही बीज डाल दिया, तो जो बीज डालोगे उसी का तो पेड़ बनेगा। तो आपने बीज ही पहले यही डाल दिया कि यार मैं तो ये सीख रही हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया 8800 और मुझे बाद में कोई कस्टमर नहीं मिला, तो व्हाई आर यू लर्निंग इट फॉर अ कस्टमर? आर यू लर्निंग सम हीलिंग मोडालिटी कि मुझे बाद में एक कस्टमर मिलेगा? और यू आर लर्निंग, सबसे पहले आपकी भावना ये होनी चाहिए कि मुझे कोई भी चीज सीखनी है तो वो अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए सीखनी है, माँ काली से कनेक्शन के लिए सीखना है। बाकी सब चीजें तो अपने आप फॉलो अप करेगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप सिर्फ कस्टमर के लिए सीख रहे हो तो आई एम सॉरी, मे बी यू रियली यू हैव पुट दिस बीच तो यू डोंट गेट इट। यू हैव टू नहीं मैम, change your thought. मैम हर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई चीज कोई सीखता है तो क्या शायद में भी हो सकता है उसके साथ कोई ऐसा इशू हो कि जो कमाने के लिए सीख रहा हो बंदा। अभी आपने बोला नहीं कि क्या नाम है नहीं नहीं, जो सी आई टेल यू, एवरीबडी लर्न्स। हर चीज आदमी सीखता है, वो उसको उपयोग में लेता है। आज टैरो कार्ड रीडिंग मैंने सीखा, मैंने लोगों की रीडिंग्स की, तो मैंने मनी एक्सचेंज लिया ना, वो उसका आफ्टर प्रोडक्ट है। आप पहले सीखो, आप उसको यूटिलाइज करो, वो आफ्टर इफेक्ट है, वो अपने आप आएगा। बट यू डोंट मैम नीड टू थिंक अबाउट इट, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट मैम विद जैसे आपने बताया कि मैम हम अपने लिए भी ये हीलिंग खुद कर सकते हैं। जैसे मेरा भी कुछ ऐसे इशू चल रहा है, डिवोर्स केस वगैरह का। सी व्हाट हेलो इफ, ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो वो डिवोर्स रुक जाएगा। इट, whatever is good for your divine life, for your highest good, वो ही happen होगा। Maybe the divorce is good for your life, so that will happen. Maybe it's not good for your life, तो दोना पैसे। ओके are you मैम, getting? थैंक यू। Yeah. बट येस, डेफिनेटली इट करेक्ट्स योर प्रॉब्लम्स। 11 दिन जब आप सिद्धिकरण करते हो, अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, उससे क्या हो रहा है, आपके जो थॉट्स, आज जो थॉट्स है ना, वो थॉट्स अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। बिकॉज माँ काली इज ऑल अबाउट इरेजिंग ऑल नेगेटिविटी। तो जो नेगेटिविटी घर कर गई है दिमाग में, वो नेगेटिविटी अपने आप वो हट जाएगी। वही तो काम है उनका, नेगेटिविटी को काटना, हटाना, खत्म करना। तो जो आज आपके थॉट्स है, वंस यू लर्न दिस, आपके थॉट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ दिस क्लास एंड एट द एंड ऑफ सेल्फ हीलिंग, it will be something different. You will be a changed personality when you do this. Ma'am, I have Thoughts ही a change हो जाते हैं। Yeah. Ma'am, what are the major precautions we should take while learning this healing? There are no precautions basically. खाली बस हम छोटे बच्चों पे ही उपयोग नहीं करते हैं इनके जो सिंबल्स है, बिकॉज छोटे बच्चों की एनर्जी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। एंड माइट बी दैट दीज सिंबल्स, बिकॉज इनके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी वाइब्रेशन है, 3,80,000 मंत्रों की ताकत है। तो हो सकता है ना कि उसके जो चक्रा छोटे छोटे, हमारे चक्रास बड़े होते हैं, उसके बच्चे के छोटे छोटे हैं, तो वो उनमें छेद हो जाए। So we will not disturb a child below 7 years old. We will do a healing of a child, क्योंकि बड़ा बच्चा होता है ना, उसके चक्रास भी बड़े हो जाते हैं। They can sustain these healing. They can absorb this healing. They can not have any side effects to it. So there are no precautions of doing this. Anybody can learn it, and anybody can practice. The learner can practice it on anybody, just other than below 7 years and below 80 years, 70 years, because उनकी भी एनर्जी बॉडी अगेन बहुत वीक होती है। पता नहीं वो इसको झेलने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंबल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन, द मोमेंट यू स्टार्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, एंड देयर इज सो मच ऑफ हीट जनरेटेड। They have a lot of heat in them, other than the Yol symbol, which is full of love. That has a different energy. वो सिर्फ loving energy है उसमें. That is a different symbol which has the energy of love. Ma'am, That do is you why know anything about today's, like it is called a 6/6 portal for today? yeah. So Ma'am, do you know anything more about it? Like many people told about today's manifestation can be done very fast because today is a very high frequency. yeah, obviously, see, it's a new moon. बहुत सारी चीजें हैं आज। एक तो अमावस है, तो न्यू मून है। एक आप यहाँ पे हो तो काली जी की एनर्जीज हैं, आप ऑब्जॉर्व कर ही रहे हो, सो यू आर ब्लेस्ड इफ यू आर हियर। देन थर्डली, इट्स अ 6/6 पोर्टल। पोर्टल क्या होता है? आपने कभी उस टाइप की मूवीज देखी है जिसमें वो पोर्टल होता है, एक ऐसे देयर इज अ पोर्टल, यानी कि यूनिवर्स में एक जगह बन जाती है, एक जैसे एक मिरर होता है, एक पोर्टल है। मिरर के थ्रू एक मूवी थी जिसमें मिरर के थ्रू
what was that movie's name? I just forgot. जिसमें वो होती है Alice in Wonderland, जिसमें पोर्टल एक मिरर होता है, तो मिरर के थ्रू दे गो टू द अदर लैंड, अदर वर्ल्ड, दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं. सो 6 मतलब 6 is a number which has a already very high frequency, and through that frequency the portal is open today. You should be open to receive the blessings from the universe. Even if you do affirmations, even if you do a small meditation for 2 minutes, even if you just chant a few mantras, even if you go to a temple, you are absorbing that vibration 24/7. So that is the meaning of portal. खाली ये नहीं होता है कि एक manifestation sheet बना लो, लिख लो, ये कर लो, वो कर लो. पोर्टल का क्या मतलब है कि आज एनर्जीज बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, आप में इतनी क्षमता है क्या उसको खींच के अपने पास अब्सॉर्ब करने की. यू शुड हैव दैट क्षमता. तो इसलिए व्हेन वी डू दिस हीलिंग मोडालिटी, हमारी वाइब्रेशन रेज हो जाती है. बिकॉज सी, हमको अगर हायर फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब करनी है तो हमको अपना वाइब्रेशन भी तो रेज करना होगा ना. आप बहुत लो वाइब्रेशन पे अगर फ्लक्चुएट कर रहे हो, बहुत लो वाइब्रेशन पे हो आप, कि जब हम लो वाइब्रेशन पे होते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी होती है और हम नेगेटिव ही सोचते हैं दिन भर, अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी. तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे हो तो यू आर नॉट रेडी, यू हैव क्लोज्ड योर ऑरा, यू आर नॉट रेडी टू अब्सॉर्ब एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. सो the moment we raise our frequency, we are open to absorb all the vibrations from the universe. अपने आप आपको मिलती है. Even if you are sleeping, you are absorbing that vibration. Are you clear now? Yes, ma'am. Thank you. Yeah, you're welcome. So anybody else wants to ask? Yeah, Sangeeta ji. Yes. Hi, Sangeeta. Hi, ma'am. Ma'am, I just want to ask, जैसे negative energies या अभी black magic word ban है, but जैसे black magic भी होता है, तो can we remove these kind of energies also through Yes, Bangla? yes, because I told you ना, माँ काली energy is very fierce and it's all about cutting the negativity. वो cut कर देती है negativity को. So when we use these symbols, कोई negative entity, negative energy, spirits, nothing can stay even in your atmosphere. वो रह ही नहीं सकते उस वातावरण में. There is so much of positivity. And one of my students, I'll not take her name, but उसके see, the moment I talk about her, I start getting goosebumps. उसने मुझसे ये हीलिंग मोडालिटी सीखी इसलिए थी कि उसके अब्रॉड में उसके 2 बच्चे रहते थे, एंड उसके जहाँ बच्चे रहते थे उस घर में there was a few entities. वो भी जाके वहां जब रह के आई तो उसके कभी चेहरे पे निशान होते थे, उसको पूरे उसकी बॉडी ब्रूइज्ड हो गई थी. फिर उसने जब वो वापस आ गई इंडिया, उसने मुझसे ये सीखा एंड उसने वहां की दूर से डिस्टेंट हीलिंग की, एंड देन शी केम बैक टू मी कि मैम बहुत फायदा हुआ आपकी इस हीलिंग मोडालिटी से. एंड उस टाइम मैं कैंडल्स बेचती भी थी, तो उन्होंने मेरे से एनर्जाइज्ड कैंडल्स भी ली थी, उनको भी यूज करके she was really very happy. And then she did, I think, Das Mahavidya also from me. So the moment you raise your frequency, अपने आप वो negative thoughts भी कट हो जाते हैं, entities भी कट हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, you know. तो मैम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई है और उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, समथिंग लाइक दैट, और हम उसको स्कैन करते हैं और हमारे को लगता है कि इसके साथ ब्लैक मैजिक भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि ब्लैक मैजिक सम डार्क, अंडरस्टैंड दैट कि इसके साथ क्या हुआ है. आप जब वो क्लेंजिंग करोगे हुमकारा सिंबल से, तो वो जो भी होगा वो सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा. ओके, वो पहचानने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है, वो क्या नहीं है. वो जब आप सिंबल प्रैक्टिस करोगे, द मोमेंट यू प्रैक्टिस दैट सिंबल, 5D सिंबल, यू डू द हीलिंग ऑफ दैट पर्सन, दैट विल गो अवे फ्रॉम हियर. क्योंकि वो नेगेटिविटी वहां टिक ही नहीं पाएगी, बिकॉज दैट हैज द एनर्जी ऑफ माँ काली. सो वो अपने आप वहां से हट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, एंड सामने वाला आपको बोलेगा कि यस आई एम फीलिंग बेटर. तो वो जो भी था वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया. ओके, एंड वन मोर थिंग मैम, कैन वी कंबाइन दिस थिंग? आई एम आल्सो अ रेकी ग्रैंड मास्टर, तो कैन आई कंबाइन दिस modality with the Reiki? Or See, no? that all depends on you. I told you I'll explain you in the class when I'm teaching you the symbols. Okay. See, we do connect the pranic healing with this healing modality, क्योंकि pranic healing से क्या है, हम cleansing ज्यादा करते हैं. तो इसमें हम जितनी cleansing करेंगे pranic healing से, उतना एनर्जी बॉडी जो होती है ना साफ हो जाती है. तो हम जब देखो, आप जैसे आपने मेकअप अप्लाई किया बिना मुंह वूह धोए, तो वो मेकअप आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा. जब आपने मुंह साफ करके फिर आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के मेकअप किया, तो आपका स्किन ग्लो करेगा. लोग पूछेंगे कि कौन से मेकअप आर्टिस्ट से आपने कराया मेकअप, और एक आप गंदे से फेस से, आप मार्केट से आए गंदे से फेस पे, चलो चलो मेकअप कर दो, एक उसका चेहरा सुंदर लगेगा या साफ. तो दैट इज व्हाट वील डू. प्राणिक हीलिंग से क्या करते हैं, हम उससे एनर्जी क्लेंस कर देते हैं, एंड देन वी पुट दिस सिंबल्स. तो वो क्या है, वो एकदम
जब क्लेंजिंग एनर्जीज हो जाती है उसके ऊपर हम ये डालते हैं ओमकारा सिंबल या हलीम सिंबल, तो वो और साफ हो जाती है और सफाई हो जाती है. So everything, that is helping this. But Reiki is again symbol. So I would say that you should avoid Reiki with the, Homkara with Halim. That's what I would say. Any particular reason why? Because Reiki में जो उल्टा चकोरे symbol है, that is also for cleansing. अब उल्टा चकोरे many. If you are doing it with Reiki, then why use the Homkara? That's what I would say. Okay. Because Reiki has a different technique totally. Okay, got it. Yeah. Because So the you have to technique trust is different. also. Homkara से पूरी cleansing हो जाती है वैसे. Okay, got it. But I don't know about pranic, that's why I was thinking. Okay. ठीक है ma'am, no worries. Thank you. Yeah, you're welcome. Yes, any more questions? Yes, Sangha Mitra, and then who has raised the hands? Vinu ji, Sangha Mitra, and Suhani Gupta, Monica. Yes, you can ask. Wanted to know the class timings. It'll be in the evening, mostly 7:30 to 8:30, because वो वाला time opt किया है सबने. It can be और 7 कब से होगा? to 15. हाँ? कब से स्टार्ट है? 10th, 11, 12, 13, 14. एंड देन जो डे सब लोग फ्री होंगे, क्योंकि अट्यूनमेंट में आपकी मौजूदगी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस दिन हम अट्यूनमेंट करेंगे सबका. मैम क्लास एक्चुअली एक दो जगह और मतलब दिन में मेरा ऑफिस रहता है और एक दो कोर्सेज और मेरे साथ वो हो जा रहा है कॉन्सेप्ट. तो इसका कोई रिपीट क्लास होगा क्या रात में 9 बजे के I बाद? don't know. So you can join it. I will send you the recording if you miss. That's what I can do, the maximum. I can't do anything else. That you have to मैम इसमें see. मैम इसमें कोई नेगेटिविटी हमें तो नहीं आती है मैम? No. Negativity तो खत्म हो रही है. इससे negativity हमारे ऊपर कैसे आएगी? That's impossible. नहीं, जैसे हम किसी की हीलिंग करें तो नहीं. You have, see, if you are healing somebody else, you can shield yourself with the Halim symbol, and then you can do the healing. So then no negativity comes. मैम जैसे आपने बोला मैम 16 को मैम मैं फ्री नहीं हूँ. आप मेरी हीलिंग नहीं कर रहे हो. सी, हम जब इसको हीलिंग स्टार्ट करते हैं ना, हम ये इन्वोक करते हैं कि माँ काली एंड माँ बगलामुखी, आई एम नॉट डूइंग द हीलिंग. आप यहाँ आए और आप ये हीलिंग करें इस बंदे की. मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ. तो जब हम ये बोल देते हैं तो हमको इस चीज पे भी हमको हम्बल रहना है कि हम हीलिंग नहीं कर रहे हैं. बेसिकली शी इज डूइंग द हीलिंग एंड शी इज जस्ट यूजिंग आवर body as an instrument to heal that person. So when are you doing the healing? So where will the negativity come? मैम 16 को मैम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैम कैसे हम करेंगे मैम? 16th को तो क्लास ही नहीं है. आई थिंक इट्स नहीं 10, 11, 12, 13, 14 को तो खत्म हो जाएगा. उसके बाद सिर्फ अट्यूनमेंट बचेगा. ओके. Yes, Vinu ji. And Ma'am, then- am I हाँ, audible? Yeah. मैम आपका ये मतलब है कि 5 days 1 hour क्लास के बाद हम लोग अट्यूनमेंट करेंगे और अट्यूनमेंट के नेक्स्ट डे 11 तक हम लोग सिद्धिकरण गोइंग टू बी द 15 to 20 See, minutes का just let me एक मिनट. अट्यूनमेंट के जरूरी नहीं है कि अगले दिन से आप स्टार्ट कर दें सिद्धिकरण. आप अपना पहले रूटीन देखोगे कि मैं अगर बीच में अभी ट्रैवल तो नहीं कर रही हूँ ना, मेरे अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मेरे अभी कोई पीरियड्स तो नहीं है ना, पीरियड्स में ये स्किप हो जाता है. तो आप अपना पहले टाइम टेबल देखोगे. टाइम टेबल के हिसाब से जो आपका सबसे कंफर्टेबल डेट है अब आप स्टार्ट करोगे. अट्यूनमेंट आपका हो गया, मतलब एनर्जी आपको मिल गई. अब आप कभी भी सिद्धिकरण स्टार्ट कर सकते हो, बट उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए. अगर उसमें 7 दिन के बाद ब्रेक आया तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम day 1. All these things I'll be teaching in the class once you join. Yeah. ये सब. So सिद्धिकरण will start only after the attunement. Yeah, that Right? cannot be done without the attunement. Yes. तो मैम वो जो 6 symbols आप बता रहे हैं, that all the 6 symbols in the attunement will be incorporated in our 7 chakras individually. Yes. So when we are Doing healing that, that's also, my work. See, what I'll be doing, I can't teach you what I'll be doing in the attunement. That is my part. हाँ जी, पर जैसे अब हम लोग कभी हीलिंग करेंगे तो सेम प्रोसेस रहता है कि जो 6 symbols हैं. की नोट्स में you are going very fast. हीलिंग प्रोसेस जो आप दूसरे की हीलिंग करोगे वो प्रोसेस तो मैं आपको दे दूंगी ना नोट्स में कि आपको इस तरह से हीलिंग करनी है. अट्यूनमेंट प्रोसेस डिफरेंट है, वो उसका एक सेपरेट क्लास है. वो तो आप ही करेंगे ना हमारे लिए. मैम, उससे तो हम अट्यूनमेंट मैम उसमें क्या होता है मैम इसमें जो आप हमें कराएंगे? इसमें मतलब क्या चीज होती है? क्या चीज? अट्यूनमेंट. हाँ जी मैम.
I'll be मैं स्थापना करूंगी सारे सिंबल्स की आपके चक्रास में, ताकि जब आप किसी सबसे पहले आप अपनी हीलिंग कर सको और किसी और की हीलिंग कर सको. आप अगर अट्यूनमेंट नहीं हुआ है तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू. आप चक्रा करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा. So attunement is important. Okay, ma'am. And can I ask now, please? Yeah. Yes, Monica. Ma'am, first thing, do we need any kind of setup or altar to heal someone during this process? No, 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 no. You can just light a candle, and if you really want to connect, you can keep a small picture of माँ काली, और आप फोन पे भी आप लगा के आप कर सकते हो. मानस मतलब जो होती है ना मन वाली पूजा, कि आप मन से आपने याद किया that I am just a माध्यम and I am doing this healing. माँ, please use me as an instrument and do this healing, and then you can start the healing. इसमें So we can do sitting in घर का पूजा घर और उस पे यंत्र बैठ के. दूंगी ना, मैं तो आपको यंत्र दूंगी, आप वो रखो अपने सामने, और उसके Right, सामने ma'am. आप एक कैंडल लगा के then you do the healing. You don't need any special altar for that, and then you can keep it in the wardrobe also after you have done Right, ma'am. Ma'am, my second question is, like you said, ki it shouldn't be done on the children below 7 or 8 years of age. What if a child actually needs help below that age? See, if it's your own child and it needs help because you are doing Siddhikaran practice, so you are already very strong, and the child is staying all the time with the mother, so he is automatically absorbing it indirectly from you. And if it's somebody else's child, you can just send the blessings to that person, to that child. Okay. Fine, ma'am. My next question is, can healing be done during the periods or not? Healing you can do during the periods, but you should avoid it during your periods, because see, we are doing an invocation, and after doing the invocation we are doing this healing. Yes. Right? Because I guess we already are so weak, like in any case. So Or avoid there is something like 3 कि days. हमारा एनर्जी लेवल लो होता है, कुछ ऐसा सीन है इसमें मैम? नहीं, एनर्जी लेवल तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. The moment, see, you are calling माँ काली, that use me as an instrument and do the healing of this person. So when माँ काली is using you, you will become weak or strong. No, definitely strong, but I just want to, the doubt is about कि when we are having our periods, generally कहा जाता है. Then you can avoid it. Why you have to do it when you're having periods only? You can avoid for 3 Right. days and then do it on the 4th day after washing your head. Just do it, because you are doing a proper yantra ka invocation. You're calling I upon know. माँ काली and माँ बगलामुखी and then doing the healing. So avoid it at that time. Why? कोई emergency है तो एक अलग बात है. Otherwise, just avoid. And ma'am, during the the person- Siddhikaran process, like how much time duration we actually need to sit or to meditate or to invoke the, Ma Kali's energies or blessings? How much time? Yes. Once the connect is developed between you and her, you just need to chant the Bij mantra. I will tell for 2 minutes. That's it. You will yourself feel the vibration. Do we need any specific mala for the same, or just एक normal हम बैठ के हाथ जोड़ के कर सकते कोई हैं? माला की स्पेसिफिक जरूरत नहीं है. अगर आप माला रखो तो रुद्राक्ष की माला रख सकते हो, because रुद्राक्ष is again connected to Shiv ji, and Shiv and Kali are the same. Ma'am, like I do meditation, I do like Shakti part, I do Shakti mantra 108 times with the Durga, that Rudraksh mala. So can I use the same Rudraksh mala for this thing? Because we are not doing the healing with that mala, we are just chanting the mantra. Yes. Chanting the mantras. Right, Mala is ma'am. very strong Ma'am, for you already. And ma'am, one last question, please. I hope you don't mind. No, I don't mind. I'm here to answer your questions only. Why will I? Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. Like हम इससे किस तरह की हीलिंग कर सकते हैं? लाइक अभी ग्रुप में बात हो रही थी कि रेकी से आई हैव हर्ड कि उससे कैंसर तक के पेशेंट्स भी हील किए जाते हैं, मेजर इश्यूज भी, बट इन एनी केस आप किसी के कर्मास भी काट रहे होते हो, तो क्या इसमें भी वही चीजें लागू होती हैं? नहीं. See, I'll tell you. You can do the healing of a child above 8 years. अगर उसकी कोई concentration issues है, तो you will just do the humkara and the wisdom वाला symbol. You will use only 2 symbols on that child, and it's done. If anybody has a relationship problem, you can use the symbols. You can do the healing. If anybody has a, कोई किसी का court case चल रहा है या कुछ भी problem है, तो you can do the healing. अगर किसी के बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है लाइफ में, तो यू कैन डू द हीलिंग प्रोसेस जो मैं आपको दूंगी, द होल हीलिंग फॉर दैट पर्सन. किसी की भी बहुत नेगेटिविटी है, या उसके घर में उसको लगता है कि मुझे डर लगता है अपने घर में, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन द हीलिंग प्रोसेस कैन बी डन
which I will be providing in the notes and which I will be telling you how to do it. You can just do that in that person's aura. Then ऐसा कुछ नहीं है कि कर्मा काट रहे हो या कुछ भी, because I also used to heal my mother-in-law. She was a cancer patient. I just did because मुझे आभास हो गया था कि that much is her lifespan, and so I did a few healings for her just to remove the pain from her body. Cancer तो उस टाइम तक वो इतने आगे तक पहुंच गई थी कि वो कैंसर ठीक नहीं हो रहा था, but just to free her from that pain, I used to give her healing when I used to stay with her in the hospital. So this healing only I used to use. So Ma'am, basically, Ma'am, this healing is going to help us to release the pain in extreme situations. Yeah, pain release होता है इससे, pain भी release होता है. Thank you Because so much, Maa ma'am. Kali, I told you, she's all about negativity cutter. And I also used to use Lama Fera along with this, because Lama Fera thoda cool down bhi karta hai. See, this is a heat wala energy and Lama Fera is a cooling down. So मैं दोनों को यूज करती थी, जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि अभी मुझे इसकी जरूरत है, अभी मुझे इसकी जरूरत है. I used to just do healing for her so that she gets the maximum results. So मैंने भी यूज किया, बिकॉज वो भी एसके सैनी जी ने इंट्रोड्यूस किया है, ये भी एसके सैनी जी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो एक ही जने की दो हीलिंग मोडालिटीज है, तो आई यूज टू मर्ज देम एंड देन यूज इट. Thank you, ma'am. या यू वेलकम. मैम हम Ma'am, कैंडल supposing if we are healing a person, so we should ensure that she shouldn't be having her periods. ये भी essential point है. नहीं अगर नहीं, उसका कुछ नहीं है उसके लिए, बट हाँ आप पूछ सकते हो उसको कि आपको अगर पीरियड्स हो तो मैं 2 दिन बाद आपको हीलिंग भेज दूंगी. ठीक, थैंक यू मैम. मैम हम दीपक जला के भी कर सकते हैं हीलिंग. कैंडल तो मैं तो दैट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. एवरी डे आई लाइट अ कैंडल व्हेन आई एम डूइंग माय साधना. नहीं मैम, जैसे एक होता है हम कैंडल्स भी कौन से कलर की कर सकते हैं, और या हम दीपक भी जला सकते हैं. दिया भी कर सकते हो, दिया कर सकते हो आप, एनी दिया, घी का दीपक या सरसों के तेल का. That's not a part of the syllabus, but yeah, you can do according to your will. आपकी क्या इच्छा है? Thank you. So there is a law of free will also कि आपकी जो इच्छा है आप वो भी कर सकते हो. आप दीपक लाइट कर सकते हो, आप कैंडल लाइट कर सकते हो, आप खाली अगरबत्ती लाइट कर सकते हो. That's up to you. Yes, Sandhya, you want to ask something? आपने तो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है ना संध्या ये क्लास. Please unmute yourself and ask. आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा, एंड अदरवाइज नहीं तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना. सो वील एंड द सेशन नाउ. इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी 8. आपको पूछना है, अनम्यूट करके पूछ लो. सबको क्लैरिटी मिलती है जब आप क्वेश्चंस पूछते हो तो.